নমস্কাৰ দুপৰ ফিনাম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী বৰ্ডিং খেলপথাৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী উষ্ম আদৰণি জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে যোৰহাটৰ পৰা অসম বচাও ৰথত আহিল ৰাহুল গান্ধী আৰু ইতিমধ্যে মঞ্চত গৈ তেওঁ উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰত ইতিমধ্যে বৰ্ডিং খেলপথাৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখুৱাইছো বৰ্ডিং খেলপথাৰত এনেদৰে আজি উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী যোৰহাটৰ পৰা অসম বচাও ৰথত আহিল ৰাহুল গান্ধী এনেদৰে তেওঁক উষ্মভাৱে আদৰণি জনাই কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ এই আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট উৎসাহী হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এইসকল লোক আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো যে কেনেদৰে তেওঁ আগমন ঘটিছে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত ये बताता है एक महीने के भीतर में 1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस कर दी। आज तक के हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासियों की जमीन छीनने का काम होता है, देने का काम नहीं होता। लेकिन राहुल जी आदिवासियों की जमीन वापस कराए। 2500 रुपये हम धान खरीदे, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार बोले आप बोनस दे रहे हो इसलिए आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अड़ंगा उन्होंने लगाया। हमने कहा ठीक हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी लोकसभा में न्याय योजना की बात कही थी। हमने वो न्याय योजना लागू की। 19 लाख किसानों के 28 लाख हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया हमने पिछले साल दिया है। ये राहुल जी का न्याय योजना। हमने न्याय योजना लागू किया, गोधन न्याय योजना। आज गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और तो और जो आदिवासी लघु यहाँ 12% है, हमारे 32% आदिवासी रहते हैं, उनके लघु अनुपज खरीदी कर रहे हैं, उनको भी न्याय हमने दिलाने का काम किया है। तो राहुल जी के न्याय योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू है। मैं बहुत ज्यादा समय आपके और राहुल जी के बीच नहीं रहना चाहता, केवल इतना। আৰু শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰলৈ পুনৰ ৰৈজাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আহিছো আন কেইটামান খবৰ মাজলৈ আজি অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী আছুতীয়া পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দেৱ দেৱ গোস্বামী উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ চানমাৰী কৃষ্ণনগৰত শুভাৰম্ভ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গৃহ আজি এনেদৰে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আছুতীয়া পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ 87ৰ 23 মাৰ্চত জন্ম হৈছিল। অসম চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত এইটো জন্ম দিছিলে। 2007 চনৰ পৰা আমি ভাড়াঘৰত আছিলোঁ। তাৰ পৰা গৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ অনুগ্ৰহত তেওঁৰ আছুতীয়া পুঁজিৰ ধনেৰে প্ৰায় 4 মাহত এই বিল্ডিংটো আমি থিয় কৰালোঁ। শিশুৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা মানুহৰ সংখ্যা সমাজত সাধাৰণতে কম। গতিকে মই ভাবিছোঁ শিশুসকল যিহেতু আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ যিহেতু আমাৰ সম্পদ, তেওঁলোক যিহেতু সম্ভাৱনাৰ আকৰ, গতিকে তেওঁসকলৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্য যদি আমি আৰু তেওঁলোকৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, সমাজখন এদিন এখন সুন্দৰ হ'ব। গতিকে মোৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন আজি আমি যে শিশুৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ মই কামনা কৰিছোঁ। সস্ত্ৰ অনুসূচী এলেকাৰ এখনো আসন নাপায় বিৰোধীয়ে নতুন ৰাজনৈতিক দলবোৰে এইবাৰৰ সমাগত নিৰ্বাচনক আনক হৰুৱাতে সহায় কৰিব কিন্তু নিজে জয়ী হ'ব নোৱাৰে লাহিনত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত অংশ লৈ মন্তব্য কৰিছে বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৱে সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু নিৰন্তৰ উন্নয়নৰ পোষকতা প্ৰমোদ বড়োৰ অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাৰ 3খন আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাৰ বাহিৰৰ 6খনকৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চিইএম সকলক লৈ অচিৰে সন্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহত উন্নয়ন
উন্নয়নৰ ধাৰা আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাক লৈ আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰতিখন পৰিষদৰ CEM-সকল। অঞ্চলত তেখেতসকলে এখনো আসন নাপায়, 0 হ'ব আৰু নিশ্চয় কাৰ্বি আংলঙতো 0 হ'ব। কোনো চিক্সিডেল অঞ্চলত এখনো আসন নাপাব। তেখেতসকলে কাকবা হাৰাব পাৰিব কিন্তু জিকিব নোৱাৰিব। গতিকে আজি যিটো নতুন এটা চিন্তা লৈ ৰাজনীতি কৰিব আহিছে, আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰা সকলোৰে অধিকাৰ আছে, নিজৰ অধিকাৰ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আহক। কিন্তু আমাৰ যিটো বছৰ এই মুহূৰ্তৰ পুনৰলৈ গৈছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰলৈ, য'ত বৰ্তমান ভাষণ প্ৰদান কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। जितेंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था। और शायद आपको ये बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है, उसके लिए असम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं। और जब मैं आता था, हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे। और मेरी जो असम की जानकारी थी, एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे। और मुझे लगता था, हर बार मैं वापस जाता था, मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया, जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे। मतलब ये नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, ये तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे। और हमारी जो टीम थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। आज मुझे बताया गया कि जो पुरस्कार असम के सिपाही को दिया गया, तरुण गोगोई को दिया गया,
उस व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश को जोड़ा, उस व्यक्ति को जिसकी पूरी जिंदगी इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए गई, और मैंने देखा कि उसी लिस्ट में जिसमें तरुण गोगोई जी का नाम था, उसी लिस्ट में पीएम ऑफिस का एक ब्यूरोक्रेट का नाम था। और मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया। एक तरफ एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जान दी, जिंदगी दे दी, असम को जोड़ा, भारत का झंडा, उसकी रक्षा की, और दूसरी तरफ पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो। तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके असम अकॉर्ड, जो एक प्रकार से असम का प्रोटेक्टर है। कैसे समझाता हूं कि बीजेपी असम अकॉर्ड को खत्म क्यों करना चाहती है, हिंसा क्यों लाना चाहती है, सीएए क्यों लाना चाहती है, मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये है 100 रुपए का नोट, है ना? ठीक है। ये है 50 रुपए का नोट। ये है कितने का? ये 10 का। और ये है 2 सिक्के 7 रुपए के, मतलब 167 रुपीस, है ना? ठीक है। अब आप मुझे समझाइए, 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है ना भैया? इससे क्या खरीदा जाता है? क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये असम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर असम से चोरी करनी है तो असम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर असम को डिवाइड नहीं किया तो असम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया? 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी, मतलब 365 रुपीस। और जो हमारे टी वर्कर्स हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको
ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया, अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सीधी सी बात है, वो आपका जो है वो आपसे छीन रहा है। मजदूर भूखा मर जाता है, इनकी सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना आया, देश के सबके सब मजदूर सड़क पे वापस घर की ओर चले। हाथ जोड़ के ये मांगा था उन्होंने नरेंद्र मोदी से, इससे ज्यादा नहीं, बस का टिकट दे दो। अच्छा ठीक है, बस का नहीं देना तो रेलवे टिकट तो दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? हम दो हमारे दो, और किसी को कुछ नहीं। हम दो हमारे दो, देखो सुंदर पोस्टर बना रखा है, हम दो हमारे दो। बाकी सब मर लो। हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं, और असम के लिए मैं उसका थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं। हम दो हमारे दो, और हमारे दो और जो असम को चला रहे हैं। हम दो हमारे दो, हमारे दो, और असम से सब कुछ लो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में, किसानों के बारे में बोले कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। तो सिस्टम बहुत सरल है। असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो, और जो असम का है ले लो। अच्छा भैया एक बात बताना, एयरपोर्ट किसको दिया? नाम बताना जरा। हम दो हमारे दो ना, उसी को एयरपोर्ट मिला ना। अरे भैया क्या भैया आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो सब कुछ देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात है। जो आपका है वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी, तो जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और जो असम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी। मैंने नोटबंदी की, जीएसटी की, कोरोना की थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको असम के बारे में बताया, और जो असम में हो रहा है वो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोजगार हिंदुस्तान में छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, किसान
और छोटे व्यापारी तैयार करते हैं, पैदा करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं पैदा करते। यहां युवा जो आए हैं, आपको तो मालूम है कि असम को, अगर हम असम की बात करें तो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। असम का युवा जानता है कि बीजेपी सरकार हो तो असम में उसे रोजगार नहीं मिल सकता, ये तो पक्का है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सड़क पे जाइए, पूछ लीजिए भैया यहां रोजगार मिला किसी को? ना, कहीं नहीं। इसका कारण है, और मैं कारण आपको समझाना चाहता हूं। रोजगार छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस तैयार करते हैं। और पिछले 5-6 सालों से इस रोजगार की रीढ़ की हड्डी पर नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण नोटबंदी, आपके जेब से 500 और 1000 रुपए का नोट निकाला, और जो छोटे छोटे बिजनेस थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो बंद हुए। किसानों के घर में से पैसा निकला, मजदूरों के जेब में से पैसा निकला। नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, फिर वही बात जो नोटबंदी के पीछे सोच थी, कमजोर लोगों को मारो, गरीबों को मारो, उनसे पैसा छीनो, वो ही जीएसटी में किया। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा तुम्हारा हुआ?